Welcome to all my students. Now we are going to discuss about the basic concept of chemistry, and the topic is equivalent mass. Myself, Kurtivas Rai, lecturer in chemistry. First, we will discuss what is equivalent mass. What is the definition of equivalent mass? The definition of equivalent mass is it is defined as the weight of the substance which combines with or displaces one part by weight of the hydrogen or 8 parts by weight of the oxygen or 35.5 parts by weight of the chlorine. By taking hydrogen, oxygen and chlorine, we can calculate the equivalent mass of the substance. इक्विवेलेंट मास को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये तीन हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम और क्लोरीन एटम का पार्ट्स 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम को लेके और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एटम को लेके और 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन एटम को लेके हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल है, लाइक द एग्जांपल्स आर कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन गिव्स मीथेन. Second example is copper plus oxygen gives cuprous oxide, and the third example is magnesium plus chlorine gives magnesium chloride. पहले एग्जाम्पल को देखते हैं. The first example is carbon plus 2 hydrogen gives methane. In this example, ये एग्जाम्पल में क्या होता है ना, एक कार्बन आटम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 4 आटम ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन होकर क्या फॉर्म करता है ना, मीथेन को फॉर्म करता है. तो इट मीन्स 4 पार्ट बाय वेट ऑफ द हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 1 कार्बन आटम मीन्स इट्स एटॉमिक कार्बन आटम एटॉमिक मास है क्या 12. तो 4 पार्ट ऑफ का हाइड्रोजन आटम 12 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ मिलकर एक मीथेन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. इट मीन्स 4 part by weight of the hydrogen combined with 12 part of carbon. Therefore, if we calculate one part, अगर हम एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा. तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉम्बाइन विथ मीन्स 12/4 into 1 is equal to 3 parts of carbon atom. Hence the equivalent mass is 3. Next, go to the other example, that is copper plus oxygen gives cuprous oxide. In this, we have to calculate the equivalent mass of copper. Means O2. O2 means ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16. तो O2 means 16 into 2 32. 32 by part of oxygen combined with 127 by part of copper. Therefore, अगर हम कितना ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 8 पार्ट्स. अगर 8 पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन का तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा. तो देयरफॉर 8 पार्ट बाय वेट ऑफ द ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 127 डिवाइडेड बाय 32 into 8 इज इक्वल टू 31.7 पार्ट. हेंस द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज 31.75. And the next example is magnesium plus chlorine gives magnesium chloride. Here 71 part by weight of chlorine combine with 24 part of magnesium. अगर हम क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा. Hence 35.5 part of chlorine combine with 24 divided by 71 into 35.5, which is equal to 12 part of magnesium. Hence here the equivalent mass of magnesium is 12. And next, what is gram equivalent weight or gram equivalent mass? Like the equivalent mass, when we calculate the equivalent mass, if we convert, अगर हम equivalent mass को convert कर देंगे ग्राम में, मीन्स हम लिखेंगे इक्विवेलेंट मास 12 है. तो अगर हम ग्राम में लिख देंगे 12 ग्राम 12 ग्राम, देन इट विल बी द ग्राम इक्विवेलेंट मास.
then the definition is equivalent weight expressed in grams is called as gram equivalent weight. For example, equivalent weight of chlorine is 35.5, hence its gram equivalent weight is 35.5 gram. Some of the formulas of equivalent mass of the substance, like equivalent mass of acid, equivalent mass of base, and equivalent mass of a salt. What is the equivalent weight of an acid? Equivalent mass of an acid is equal to the molecular weight of that acid given divided by the basicity of the acid. And the equivalent mass of a base is equal to molecular weight of a base divided by acidity of a base. Equivalent weight of a salt is equal to the molecular weight or formula weight divided by valency of the atom, metal atom. Here the metal atom always carry the positive charge. मेटल atom हमेशा काटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. व्हाट इज नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, तो यहाँ पे एक वर्ड है बेसिसिटी. व्हाट इज बेसिसिटी? एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस, व्हाट इज एसिडिटी? हाउ बेसिसिटी इज कैलकुलेटेड, हाउ एसिडिटी कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे बेसिसिटी क्या है. तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आटम, H+ आयन, जितना एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितना भी हाइड्रोजन आटम आयोनाइजेबल हो पाएगा, डिसॉल्वेबल हो पाएगा, उसको हम बोलते हैं उसका बेसिसिटी. द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड. For example, there are three types of acid you can found. You can find monobasic acid, dibasic acid, and tribasic acid. Monobasic acids are those which have one H+ ion. Dibasics are which are 2 H+ ion, and tribasics are which are 3 H+ ion. Here are some examples. HCl, HNO3, and CH3COH are monobasic acid. HCl means H+, 1 H+, HNO3 means 1 H+, CH3COH में CH3CO minus and 1 H+. Hence these are monobasic acids. In the second, H2SO4, H2C2O4. Here there are 2 H+ ions which are ionizable. Hence the basicity is 2. And third one में क्या है ना, H3PO4 है, H3ASO4 है में. तो इसमें क्या है 3 H+ आयन है जो कि आयोनाइजेबल हो पाएगा, इसीलिए इसका बेसिसिटी है 3. नेक्स्ट गो टू द एसिडिटी ऑफ द बेस. हियर द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल रेडिकल, OH रेडिकल, कितना OH रेडिकल प्रेजेंट रहता है एक मॉलिक्यूल में जो कि आयोनाइजेबल हो सकता है, उसको हम बोलेंगे क्या ना, एसिडिटी ऑफ दैट बेस. फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, दीज आर मोनोएसिडिक बेसेस because there are 1 OH minus ions which are ionizable, hence the acidity is 1. and second one में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कितना OH है ना, 2 OH है, इसीलिए these are डाईएसिडिक बेसेस. एंड थर्ड वन में AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये 3 है. यहाँ पे 3 OH माइनस आयन है जो कि आयोनाइजेबल हो सकता है. सो इसका एसिडिटी है 3. व्हाट इज ए मॉलिकुलर वेट? द मॉलिकुलर वेट इज जनरली डिफाइंड एज, यू कैन, आप ये समझ सकते हो कि एक मॉलिक्यूल में जितना भी आटम है, अगर वो सब आटम का एटॉमिक मास हम ऐड कर देंगे तो उसका मॉलिकुलर मास पता चल जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है ना, molecular mass of a substance is defined as the number, the average relative weight of its one molecule, एक मॉलिक्यूल के लिए of its one molecule obtained by, कैसे obtain कर सकता है ना, obtained by comparing it with 1/12 weight of the carbon atom. कार्बन आटम का 1/12, 1/12 वेट ऑफ द कार्बन आटम को लेके हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द मैथमेटिकल डेफिनेशन इज मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू
एवरेज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, कितना एवरेज वेट रहता है उस मॉलिक्यूल का, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द कार्बन आटम। नेक्स्ट, व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कितना परसेंटेज एक सॉल्यूशन में रहता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिफोर डिस्कसिंग दिस आई एम गोइंग टू गिव ए सिंपल एग्जांपल। आपका जो भी मार्क आप सिक्योर करते हो एग्ज़ाम में, मैथमेटिक्स ले लो, मैथमेटिक्स का टोटल मार्क क्या है 100, आप सिक्योर किए 90, तो आपका परसेंटेज क्या हुआ 90, कितना मार्क सिक्योर किए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज योर परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स। लाइक ए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ना, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ ऐड होता है एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है, मींस सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, इसको हम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, कितना कॉम्पोजिशन का रहता है वो भी बोल सकते हैं। तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज डिफरेंट टाइप्स। एक क्या है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट, दोनों का वेट कंपैरिजन करके हम डिस्कस भी कर सकते हैं वेट को लेकर। परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम को लेकर भी हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। 100 ml 1000 ml, 100 ml एक दिया हुआ है, टोटल सोल्यूशन है 1000 ml, तो 100 बाई 1000 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट एंड वॉल्यूम, एक का वेट दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें भी हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। द वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है जो कि ग्राम में रहता है, वो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट, मीन्स वेट परसेंटेज। The mathematical definition is percentage composition by weight is equal to weight of the solute divided by total weight of solution into 100, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना है इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। और कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मैंने बोला है कि सॉल्यूशन कैसे फॉर्म किया सकता है ना, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड होता है एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो अगर टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए उसको मॉडिफाई करके ये डेफिनेशन आया है। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज लेंगे इन वाटर, मीन्स देयर आर 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है, वो डिजॉल्व होके एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है। तो 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर to form 100 gram of solution. Another example is 40 gram of solute is dissolved in 100 gram of solvent. Calculate the weight percentage of the solution. यहाँ पे solute का weight percent calculate करना है। तो percentage by the formula percentage composition by weight is equal to weight of solute divided by total weight of solution into 100. Then the weight percentage is equal to weight of solute डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, देन इनटू 100। चलिए वेट परसेंटेज इज इक्वल टू सॉल्यूट का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 40 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाय टोटल वेट क्या होगा ना, 40 ग्राम सॉल्यूट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 40 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1040 हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। তাহলে 40 ডিভাইডেড বাই 1040 ইন্টু 100 হুইচ ইজ ইকুয়াল টু 3.85%।
Second one is percentage composition by weight and volume. The mass of solute dissolved in 100 ml of solution. कितना वेट का सॉल्यूट डिजॉल्व होता है 100 ml का सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मैथमेटिकली यू कैन डिफाइन percentage composition by weight and volume is equal to weight of solute divided by total volume of the solution, यहाँ पे वॉल्यूम लेके, into 100. एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम. सिर्फ वॉल्यूम को लेकर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का रहता है पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज. ऑल्सो मैथमेटिकली percentage composition by volume is equal to volume of solute divided by total volume of solution into 100. For example, 10% of ethanol in water means 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the volume, total volume is 100 ml. Next, what is ppm, ppb and ppt of solutions? Before going through this, ppm, the formula of ppm is parts per million, ppb means part per billion, ppt means part per trillion, million means 10 to the power 6, billion means 10 to the power 9, trillion means 10 to the power 12. Then if we discuss what is parts per million, then mathematically it is defined as parts per million is equal to the weight of the substance given, weight of the substance, जो सब्सटेंस का वेट दिया जाता है, गिवन दिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कितना टोटल वेट है सॉल्यूशन का, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मिलियन इनटू 10 टू द पावर 6. एंड नेक्स्ट, पार्ट्स पर ट्रिलियन मीन्स, बिलियन मीन्स weight of the substance divided by total weight of the solution into 10 to the power 9. For billion we can take 10 to the power 9, and for trillion same formula, parts per trillion is equal to weight of the substance, जितना weight दिया जाता है divided by total weight of the solution, total weight कितना है into 10 to the power 12 means 1 trillion. Taking some examples, a solution contains 0.008 gram of the substance in 1 kg solution. 1 kg means 1000 gram. What will be its concentration in parts per million? Solution means given क्या दिया हुआ है ना, weight of the substance is equal to 008 gram, 0.008 gram. Weight of the solution 1 kg which is equal to 1000 gram. Then parts per million is equal to, formula is weight of the substance divided by total weight of the solution into 10 to the power 6. Then parts per million is equal to, the given substance is 0.008 divided by total is 1000 into 10 to the power 6. Then 0.008 is equal to into 10 to the power 3, which is equal to 8 parts per million. The answer is 8 parts per million. Second example is a solution of glucose is 24 parts per million. यहाँ पे parts per million दिया हुआ है. If weight of the solution is 100 gram, solution का weight दिया हुआ है 100 gram. What is the amount of glucose in the solution? कितना glucose present है वो solution में. तो given क्या दिया हुआ है ना, weight of the solution 100 gram. हमको calculate क्या करना है ना, weight of the substance को calculate करना है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6. तो पार्ट्स पर मिलियन कितना दिया हुआ है 24. 24 इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 6. देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 which is equal to 0.0024 gram. Some notes are there. What we have discussed, जो भी हम डिस्कस किए इस क्लास में, ये उसका सब नोट है, शॉर्टकट नोट्स.
जिसको हम पढ़ के जान सकते हैं। एक में क्या है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हेंस जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम का, तो अगर हेंस परसेंटेज बाय वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम चेंज होगा, कब चेंज होगा ना, जब टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग क्या करते हो ना, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो, वो अगर कुछ पैसा देंगे या कुछ करेंगे तो तुम पढ़ पाओगे या कुछ कर पाओगे। इसीलिए यहाँ भी वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड नोट इज total volume of the solution is not equal to volume of the solute plus volume of the solution। टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन में रहता है वो कभी भी समान नहीं है, कभी भी इक्वल नहीं है। किसके साथ ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट से। मगर टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेट, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मगर वॉल्यूम समान नहीं है, क्यों ना, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल रहता है वो जब डिजल्व होता है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा ना, तो जितना सॉल्यूशन आएगा वो सही सॉल्यूशन नहीं आएगा, टोटल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूट पार्टिकल में ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। जब स्ट्रक्चर ऑफ जब स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड करेंगे तो हम जान पाएंगे कि कहाँ पे वो जो स्पेस रह गया जिसके लिए टोटल वॉल्यूम नहीं आया। थर्ड वन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूनिट इज यूज्ड व्हेन बोथ कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड। परसेंटेज वॉल्यूम कब कैलकुलेट किया जा सकता है ना, जब दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे, तब जाके परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप इनबॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन करने के लिए चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। एंड finally, thank you to all of you for watching my channel, and just subscribe and like more and more. That's why I am uploading more and more videos on this YouTube channel for your benefits, and I am preparing some motivational videos for the next time to upload. Thank you to all of you.